Okay, so today's topic is forest and wildlife. सर वैसे हम लाइव चैप्टर कर सकते हैं। कौन से करेंगे इसके बाद में? ठीक है. So what picture comes to mind when we talk about the forest? Okay. As you know that India was basically a agriculture based country, and initially there were many forests, and all around the earth the forest cover was very much, and slowly as different civilizations came on earth, they spread, so the forest cover diminished. Why diminished? Because as the people grew on planet, so they needed land to live for their own families, okay, for their own societies. So what they did was, initially the cover was there, right? And slowly that biodiversity, they used to cut the forests, and then they made their own villages, they made their own habitats, okay. तो मेन जो कवर था, सो इट वाज फॉरेस्ट कवर सबसे पहले सबसे ज़्यादा था. बट व्हाट इज़ इट लाइक? ओके, सो इफ़ वी सी द इंटरनेट आल्सो एज ऑफ टुडे, तो वो भी एक तरह का, इफ़ वी सी कि भाई व्हाट इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ अ फॉरेस्ट with different biodiversity. So the initial concept was coming from the forest itself. The main point that we can highlight from the forest is biodiversity, okay. So forest doesn't mean that it has got only trees. Forest may different you will find different kind of vegetation, you will find different kind of wildlife, and different kind of herbs, and you will find tribals also. So it was a nice ecosystem in the start. When the technology was not there, the people used to live over there, and when they needed land, they used to cut the forests. Now that this system has become much organized after that, so we will cover some of the things. So if we see, if we consider the forest cover in million hectares, so in 1947 it was around 40 million hectares forest cover as per the data. Approximately 40 million hectares. और अगर उसमें देखें तो इट ग्रू, थोड़ा बढ़ा भी, 76 तक गया, 0.5. और if we see in 2019 recent, 71.22 million hectares, okay. And if we see the total world forest cover, तो वो होगा करीब करीब as per the estimate 4.06 billion hectares, okay. And though the forests are not at a single place, they are distributed around the world. Total land area, if we see, वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर जो है देखें तो इट इज़ 4.06 बिलियन.
ओके, टोटल लैंड एरिया अगर देखते हैं, करीब करीब 51,000 ऐसे मिलियन हेक्टेयर्स में होगा। कुछ इस तरीके से। ओके, have you seen any forest with your own eyes? Basically in we see that India में it used to be like very forest cover was very much, है ना, and after like when the Britishers came they took over and they saw that real potential in the forest, काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे, and they took that over the management of that as far as they could, और वहाँ पे काफ़ी सारी फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हुआ कई लेवल पर, ठीक है। But after independence, if we see, the forest department took over, but the local knowledge or local needs, they were still ignored due to that management, old management practices. ठीक है। अब इसमें फॉरेस्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है सबसे, वो ये है कि फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक वाइल्ड लाइफ यू कैन सी एट वन प्लेस। लेकिन इफ़ वी सी द फार्मिंग, अगर हम अपनी कैश क्रॉप्स देखें तो हमारा क्या है, क्योंकि सिंस वी हैव टू लाइक इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर आवर अर्निंग्स एंड फॉर आवर डे टू डे लिविंग्स, तो वो जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली मोनोकल्चर्स में बिलीव करते हैं ज़्यादा। मोनोकल्चर्स मतलब एक तरीके की कोई फसल उगा दी उसमें। ओके, सो आई स्टिल रिमेंबर एक आई सॉ अ मूवी कॉल्ड हैप्पीनेस और समथिंग, स्वामी क्रियानंदा थे एक, योगदा सत्संग सोसाइटी के, और आई थिंक हो सकता है अभी भी हों, और यूएस में थे तो उन्होंने एक कम्युनिटी कल्चर शुरू किया था। तो वहाँ काफ़ी सारे लोग, द पीपल आर लाइक फ्रॉम क्वाइट गुड लर्नड पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे और वहाँ पे वो कम्युनिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो फार्मिंग वगैरह शुरू करी, तो फार्मिंग में वो क्या करते थे कि दे यूज टू लाइक स्प्रेड द सीड्स, ठीक है। तो अभी अगर आप देखते हो, अभी अगर आप देखते हो तो जैसे फार्मिंग है कोई भी, है ना, तो इस तरीके के हमारे प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप फार्मिंग के देखोगे तो उसमें इस तरीके से हमारी अलग अलग क्रॉप्स वगैरह रहती हैं, ओके, और उसमें भी क्यारियाँ वगैरह होती हैं, राइट। क्यारिया मीन्स देयर इज़ अ फाइन पैटर्न, जैसे हम करते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर कैसे करेंगे, इस तरीके से बहुत रिफाइंड होता है, या फिर अदरवाइज ऑल्सो। तो हमारे प्लॉट्स इस तरीके के होते हैं क्योंकि दे आर इजी टू मैनेज, बट जनरली व्हाट दे वर डूइंग कि भाई वो दे वर गोइंग फॉर द नेचुरल प्रैक्टिसेस, ओके, एंड आई ऑल्सो स्टडीड दैट फॉर सम टाइम। नेचुरल में उन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ तो भी एक इस तरीके का कुछ प्लॉट ऑफ लैंड था ऐसे, ठीक है, और उसमें दे यूज्ड टू स्प्रेड द सीड्स, ऐसे फेंक देते थे जगह जगह ऐसे, थोड़ा सा ध्यान से करते थे बट हाथ से ऐसे फेंकते थे बस, और उससे जो होता था उसको वो लेते थे फसल को, ओके। तो ये वाला जो बिहेवियर था ये कुछ कुछ फॉरेस्ट जैसा बिहेवियर है, क्योंकि फॉरेस्ट में यू नेवर नो कि भाई एक बहुत स्ट्रीमलाइन और स्ट्रक्चर टाइप से अप्रोच नहीं रहती, इट इज़ मिक्स काइंड ऑफ एन अप्रोच। इवन इन द फैमिली वेयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल, तो वहाँ पे एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो उसमें भी देखोगे तो एक फैमिली किस तरह से बिहेव करती है ना, तरह तरह की बातें उसमें होती हैं, एंड दे लिव टुगेदर, दे ईट टुगेदर, है ना, समटाइम्स दे आर सेपरेट एंड समटाइम्स दे आर टुगेदर, तो वो लेकिन फाइनली दे आर लाइक वन फैमिली। तो उसमें एक फोर्स नहीं होता। तो ये वाली जो चीज़ थी, ये अप्रोच मैंने वहाँ पे देखी, है ना, कि अभी हमारे यहाँ पे इट इज़ अ काइंड ऑफ अ, यू माइट नॉट मे बी एग्री, बट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स। इसमें आप एटलीस्ट उसका साइज फोर्स कर रहे हो कि भाई ये सीधी होंगी, यहाँ से ऐसी होंगी, क्यारियाँ ऐसी होंगी, तो वो देखने में थोड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन द रियल नेचुरल अप्रोचेस जिसमें उन्होंने सीड्स ऐसे थ्रो किए, सो उसमें व्हाट यूज्ड टू हैपन व्हेन द सीड्स वर वेरी क्लोज, तो वो जब पास में आ जाएंगे तो कई सीड्स तो ग्रो ही सही से नहीं हो पाते थे, तो वो वहाँ पे मर जाएंगे, दे विल डाई आउट।
है ना, और जो सही वाले हैं जो थोड़ा दूर हैं ऑप्टिमम उस पे, वो अपने आप आएंगे. सो दिस इज द अल्टीमेट नेचुरल थिंग. बट व्हेन यू विल गो फॉर द मोर टेक्नोलॉजी और यू हैव गॉट एक्सपोजर टू द टेक्नोलॉजी, यू माइट नॉट एग्री विथ दिस अप्रोच. बट अल्टीमेटली क्योंकि वहाँ पे अभी जो वट एवर द अप्रोच ड्यू टू टेक्नोलॉजी पीपल हैव ऑल्सो इम्बाइब्ड इन देयर लाइफ, वो थोड़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है. So instead of structured approach, if you have got more natural approach, there are more benefits. People are like for many years they are now doing. In US also they have shifted to this community culture. तो उसमें लोगों को जैसे जैसे काम आ रहा है they are doing and they have got tremendous amount of skills, but they are not, वो उसको एक स्पेसिफिक उसमें लगा रहे हैं कि भाई जब कम्युनिटी को ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है नीड बेस्ड पे, सो दे डू इट, है ना. और इस तरीके के एक नेचुरल फार्मिंग का वो है. तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें दीज लाइक मिमिक्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में जैसे अभी व्हाट दे से कि इन फॉरेस्ट दे हैव अ मदर ट्री. ठीक है, एक बार एक स्टोरी अभी मैंने, शॉर्ट स्टोरी थी वो, अब तो खैर बड़ी हो गई, तो वो उसमें लिखा था. तो उसमें था कि भाई कॉन्सेप्ट है कि जो भी जंगल्स होते हैं तो उसमें एक मदर ट्री होती है. ओके, मदर ट्री का क्या मतलब है कि देखो जंगल का कॉन्सेप्ट, नाउ पीपल, क्वांटम पीपल आर आल्सो रिसर्चिंग ऑन द फॉरेस्ट, और अभी वही सारी अप्रोच लेके आ रहे हैं. इफ़ यू सी मैनी ऑफ द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इंटेलिजेंस, दीज न्यूरल नेटवर्क्स आल्सो, तो आप रैंडम फॉरेस्ट देखोगे उसमें दे हैव लाइक स्लोली एक्वायरिंग दोज थिंग्स. तो उसमें देखोगे वो एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, आप देखो तो दे आर लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, रियल फॉरेस्ट इटसेल्फ. तो वहीं से आ रही है ना. तो उसमें एक मदर ट्री होती है जिसके के रूट्स होते हैं. पहले क्या होता था कि भाई मदर ट्री के नीचे इफ़ यू फाइंड अदर वेजिटेशन तो उसे निकाल दो. अभी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्या था कि भाई अगर छोटी मोटी कोई वेजिटेशन आ रही है उसके नीचे तो उसको निकाल सकते हो आप. लेकिन अब उनको पता लगा कि जो छोटी वेजिटेशन, द स्मॉल वेजिटेशन जो अभी निकल आती है कभी कभी, वो भी इट इज़ लाइक इन द कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट वो बेनिफिशियल है ट्रीज़ को. तो अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे you'll find द डेंस कवर, उसमें तरह तरह के प्राणी आपको मिलेंगे. कई बार आपको इफ़ you'll go from a big city then you'll find कि भाई ये क्या हो रहा है ना. लेकिन दो you'll find a very peace of mind you'll find and vibration will be good. लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि इतनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तो नहीं लग रही है यहाँ पर जंगल में, है ना. तो वो ये दो अप्रोचेज़ हैं. तो हम भी जनरली बहुत स्ट्रक्चर्ड रहना चाहते हैं, पर जनरली नेचर में अगर आप देखो तो वो चीज़ें एकदम नेचुरल और थोड़ी सी बायोडाइवर्स टाइप की चीज़ें हैं. ओके, तो वो अप्रोच नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर. क्योंकि इन मैथमेटिक्स ऑल्सो भी जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो आप कब जब भी आगे पढ़ोगे तो देखोगे जैसे माइंड का स्ट्रक्चर है वैसे ही वो न्यूरल नेटवर्क्स का भी है. तो उसमें एंड इवन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज़ में यूट्यूब वगैरह ये जितना भी अंडरग्राउंड में जो वट एवर द ऑटोमेशन इज़ डन, वो सारा अब बेस्ड अपॉन इनपुट है. और उसमें भी ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा सारे देखे जाते हैं और ऑटोमेटिकली इट इज़ हैपनिंग. ठीक है, सो नाउ ऑल दीज जंगल अप्रोच इज टेकिंग अपॉन, फॉरेस्ट अप्रोच इज टेकिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी ऑल्सो. एंड गोइंग फॉरवर्ड उस वो थोड़ी आसान भी है, इतनी टफ नहीं है जितनी पहले थी. हम इतना ज़्यादा वो लगाते थे. नाउ इनपुट आते हैं, अपने आप वेट्स चेंज होते रहते हैं न्यूरल नेटवर्क में. तो इसी तरह से एक जंगल में भी है, कोई एक घटना होती है, मैं जस्ट उसका थोड़ा सा वो दे रहा हूँ. जो भी है इस तरीके से हमारे नोट्स रहते हैं. आते हैं इस तरीके से आगे आ जाते हैं वो, है ना. हमारे माइंड में भी होता है और यही सारे स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ भी फॉलो करने को मिल जाएंगे. ओके, देखना कभी अगर जो थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो रैंडम फॉरेस्ट वगैरह हैं उसमें. ओके, सिमोन सीमार्ड हैं जो इन चीज़ों पे काम करती हैं. दे आर सेइंग दैट वुड वाइड वेब उसे बोल रहे हैं, जो अंडरग्राउंड में ट्रीज़ के नीचे जो मदर ट्री होती है, जैसे ये इसके जो नीचे कनेक्शंस होते हैं, इसी से सारी
न्यूट्रिशन जाती है आसपास के, तो जो छोटे मोटे प्लांट हैं जैसे वो इससे कनेक्टेड रहते हैं रूट से इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक तरीके की मदर ट्री होती है ऐसे जंगल में। तो आप घर में भी देख सकते हो, तो सेम थिंग इज कि घर में भी एक मदर होती है। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो जो सबसे बड़ी हैं वो मदर है एक तरीके से, वो सबका ख्याल रखती हैं, राइट। तो ये वाली अप्रोच सेम ही है। तो वाई वी आर स्टडिंग कि भाई आइसोलेशन में जंगल्स को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसको रिलेट करना सीखें अपनी डे टू डे लाइफ से। मदर मदर ट्री, ठीक है, ये होती है मदर ट्री। तो जैसे वो मदर ट्री है, वी सी इन अभी जो नई फार्मिंग आ रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वो उसको अब ऋषि खेती बोल रहे हैं। ऋषि खेती मतलब वो काफ़ी कुछ जैसे जंगल में होती है वहीं से इंस्पायर होके आई है। सो दैट वाज इंस्पायर्ड बाय, मतलब फाउंड बाय मिस्टर सुभाष पालेकर, जो काफ़ी टाइम फॉर अबाउट 6 years वो महाबलेश्वर के जंगलों में उन्होंने रिसर्च करी, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो पेड़ बहुत ही हेल्दी हैं, और इतना अच्छा इकोसिस्टम रहता है जंगल के अंदर, और उसमें तो हम कुछ अलग से डालते नहीं हैं, ना किसी भी तरह का न्यूट्रिशन डाल रहे हैं जैसे खेती में डालते हैं, तो फिर वहाँ पे इतने अच्छे फल क्यों आते हैं, इतने कंप्लीट हैं, उनके अंदर कोई दाग नहीं होते, वो एकदम क्लीन होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। जबकि हमारे जो बाहर रहते हैं तो वो तो थोड़े से उसमें दाग भी रहते हैं और उतने अच्छे भी नहीं रहते। लेकिन वो, तो उन्होंने कहा कि भाई आखिर इनको सारा, क्योंकि इफ़ यू सी सपोज इफ़ यू सी अ लेमन, इफ़ यू सी अ मैंगो, तो अगर आप उसकी स्टडी करो तो उसमें अलग अलग मिनरल कंटेंट्स आते हैं। मैंगो में कुछ अलग आएगा, इसमें कुछ अलग आएगा, जामुन में लोगे तो कुछ अलग आएगा, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है, आ तो सब ज़मीन के नीचे से ही रहा है, राइट। तो वो जो एक फाइन बैलेंस है वो बीज के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा बीज तो उस हिसाब से नीचे से मिनरल्स खींचने वाले हैं। तो वो बीज जो है, द सीड, सीड ऑफ द ट्री जो भी है, सीड ऑफ द फ्रूट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर एप्पल में जाओगे तो उसमें कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी, जबकि अंडरग्राउंड में तो वही सारी चीज़ें हैं। उसमें से कौन सी चीज़ें खींचनी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो एल्गोरिथम है, ये बीज के पास रहती है कि वो कौन सा आप बीज डालोगे तो उसी हिसाब से वो फल आएगा, और उसके अंदर एक फाइन बैलेंस होगा जो एक तरह की चीज़ों को टेक केयर करने के लिए ठीक होगा। तो ये एक बहुत ही, अब नाउ द क्वांटम पीपल आर स्टडिंग ऑल दीज फिनोमिनन, दीज नेचुरल फिनोमिनन, सो द बेस्ट थिंग नाउ इज़ फार्मिंग। और फार्मिंग जो है वो भी अब इंटेलिजेंट फार्मिंग हो गई है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं है, और नेचुरल चीज़ों से है, गौमूत्र यूज़ होता है, काउ डंग स्लरी यूज़ होती है, ठीक है। और कीट रोधक वगैरह आ गए हैं, है ना, नाशक की जगह कीट रोधक काफ़ी सारे आ गए हैं। आप थोड़ा देखोगे कभी जब टाइम मिलेगा तो बहुत ही नेचुरल तरीके से जा रहा है। तो अब एक नया अच्छा इकोसिस्टम हो रहा है, विच आई कुड ऑल्सो सी कि भाई गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो ये विल सी कि भाई अर्थ पे ये चीज़ें फिर से रिवाइव हो रही हैं, नेचुरल चीज़ें, ओके। तो बाहर बाहर भी ये सब चीज़ें इस तरह से स्टार्ट हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। तो अभी वेव जो है नेचुरल वाली है, ओके। तो इसमें आपके, लेकिन अब जैसे है ये जो नेचुरल वाली है, तो ये एक जंगल का एरिया है, उसका कोई वैसे तो पता नहीं होता। अब जनरली इफ़ इट इज़ योर फार्म तो आपको चाहिए कि भाई इतने बाय इतने का है तो ये तो मेरा है, वो दूसरे का है, तो फिर आपको ये शेप्स लगानी पड़ती हैं। लेकिन शेप्स में भी अगर आप अलग अलग शेप्स लगाएं, मान लो आपकी फार्मिंग में सर्कुलर है, कभी लगा के देखना, ऐसे हाइपोथेटिकल है थोड़ा सा भी, इस तरह के फार्म्स हैं मान लो आपके, है ना। तो उसके बीच में ये जगह बच जाएगी इस तरीके से, अगर आप ऐसे मान लो फार्म्स रखते हो, एक तो थोड़ा सा टफ होगा ये, लेकिन ये बीच बीच में ऐसे जगह बच जाती है ना। तो नेचर कुछ इसी तरह से रखता है। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे तो वो स्फेरिकल होती हैं, क्योंकि वो ऐसे उसकी वॉल्यूम वैसी हो जाएगी कि जिससे कि वो ऑप्टिमाइज्ड रहती है। नेचर में, नेचर का जो मेन प्रिंसिपल है वो ऑप्टिमाइजेशन है ना। तो वो कैसे करता है, एक जंगल फॉर्म करता है तो उसी में कुछ एनिमल्स भी रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, देयर आर मैनी फूड चेन्स, फूड वेब्स, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। और ट्रीज़ भी रहते हैं, ओके, सनलाइट भी रहेगी, फ्रूट्स भी रहेंगे, उनको खाना भी मिलेगा, सारी चीज़ें वहीं वहीं हो जाती हैं। तो ये जो पुराने इकोसिस्टम्स थे, इफ़ यू सी कि कहीं कहीं अभी कुछ स्टोरीज़ में दिखाते भी हैं जो उतनी ग्रेव हैं, तो वो जो चीज़ होती है अब वो फिर से कहीं ना कहीं रिवाइव हो रही है बाकी जगहों पर भी। और अब जो बीच की एक स्ट्रिक्टनेस थी, जो फोर्स थी चीज़ों के अंदर, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ओके। तो इस तरीके से मोनोकल्चर्स में
जैसे पाइन है, टीक है, यूकेलिप्टस है, तो ये उसमें क्या होता है, पहले अगर आपको मोनोकल्चर्स मतलब अगर एक तरीके का कोई फसल लगाना है तो उसमें क्या होगा, जो वहाँ पे ऑलरेडी अगर फॉरेस्ट है तो उसको पहले आपको साफ करना होगा और फिर वहाँ पे एक तरह की फसल लगाओगे, जो कि आजकल हो रहा है खेती में, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट में तो तरह तरह की चीज़ें रहती हैं, बायोडाइवर्सिटी तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा फाइन थिन लाइन है बायोडाइवर्सिटी में, किस तरीके से वो कम होती जा रही है, या फिर अब दोबारा से ध्यान दे रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर भी हमारा अच्छे से बढ़ता है, बढ़ा भी है पीछे के टाइम में, अभी हमने जैसे डेटा देखा है ना, यहाँ पे देखो 2000 इसमें इधर कम हुआ है थोड़ा सा, पहले वहाँ पे जितना था और 76% तक गया वो, और फिर किस तरीके से कम होते जा रहा है ना। तो अभी अगर इफ़ वी टेक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट वी आर अवेयर अबाउट दिस कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे जैसे, बट देयर हैज़ टू बी सम टेक्निक्स, वो तो आ चुकी हैं, फार्मिंग की टेक्निक्स अच्छी वाली आ चुकी हैं, और आई हैव लाइक वेरीफाइड दैम बहुत अच्छे से, और आने वाले दिनों में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, दैट इज़ द होल थिंग, कि कितने दिनों में मूव करते हैं, वो धीरे धीरे कर रहे हैं, दैट्स अ लाइक का थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता ही है वो नई चीज़ लेने के लिए, ठीक है। तो जब भी करना है, बट देर इज़ अ ट्रेड ऑफ कि भाई ऐसा तो है नहीं कि जब इफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ दैट मच तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहते हैं लोग, ठीक है। दैट वाज वन थिंग। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी में एक चीज़ आती है कि भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रीज होंगे, ओके। आई स्टिल रिमेम्बर कि भाई व्हेन आई वाज इन जोहानिसबर्ग, तो उसमें मुझे याद है अभी भी कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क था जिसमें हम घूमने गए थे, और बहुत ही ऊंचे ट्रीज थे, बहुत ही शांत ट्रीज थे उसमें। तो व्हेन वी वर लाइक मूविंग, है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आई शुड टेक द सीड फ्रॉम हेयर टू इंडिया, तो वहाँ से मैंने उस ट्री का सीड उठा के अपनी जेब में रख लिया, और फिर जब मैं चलने लगा तो पता नहीं क्या हुआ, हम बात कर रहे थे और मुझे खुद भी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा मेरे को हुआ कि मैंने वहाँ पे ज़मीन के ऊपर एक कला मंडी टाइप का लगाया, एंड पीपल वर वाचिंग मी कि भाई ये क्या कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे वो करा और फिर मैं खड़ा हो गया ऐसे करके, एंड देन एट दैट टाइम ऑल्सो आई डेंट रियलाइज कि व्हाट हैपेंड, बट व्हेन वी वर एंटरिंग द कार, वी व्हेन ओपन द डोर, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लेट मी चेक माई सीड इन माई पॉकेट, शर्ट में जो भी ऊपर पॉकेट में था, तो मैंने देखा तो वो सीड मेरे पास नहीं था, तो वो सीड निकल चुका था, वो जो मेरा एक्ट हुआ था। तो मैंने देखा कि कैसे मदर नेचर इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। वो बीज जो थे वो वहीं पे खुश थे, वो बहुत शांत थे, वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, है ना। अगर मैं उन्हें यहाँ कहीं लगाता तो हो सकता है वो उतने खुश ना रहते या फिर उन्हें दिक्कत आती। तो इस तरीके का एक फाइन एल्गोरिथम नेचर में चलता रहता है ना। कैसे कैसे आप बेटर वाइब्रेशन में मूव करते हो, लेकिन बट यू हैव टू क्रॉस इट, ऐसे जंप नहीं मार सकते आप, अगर आप जंप मारोगे तो फिर गिर जाओगे। तो इसीलिए दैट इज़ वाई आई इंसिस्ट इन माई टॉक्स ऑल्सो कि भाई स्लोली स्लोली वट एवर यू डू, डू फ्रॉम योर हार्ट, और अच्छे से करो उसे, जितना भी करो, पढ़ाई है या जो भी चीज़ है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, है ना, यू शुड बी गुड एट दैट, एंड ऑलवेज कंसिडर द बायोडाइवर्सिटी इन द नेचर इकोसिस्टम, है ना। इट शुड बी अ बैलेंस अप्रोच, ऐसा नहीं आप करे जा रहे हो और बाकी लोग एकदम से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कोई नई चीज़ करने में शुरुआत में, लेकिन जनरली आपका एक इकोसिस्टम होना चाहिए, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखते हुए वो चीज़ अगर होती है तो ज़्यादा अच्छी होती है, एक बैलेंस अप्रोच उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देर आर एरियाज, इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, देर आर एरियाज ऑन अर्थ विच आर वेरी फाइन, विच आर वेरी पीसफुल, और वहाँ पे अगर फॉरेस्ट कवर देखोगे तो वहाँ पे एकदम बहुत ही शांत है ना, और बहुत सारा है ना। तो वो जो वाइब्रेशन है, अगर वहाँ के ट्रीज आप इफ़ यू वांट टू लाइक माइग्रेटेड टू कभी ले जाना चाहोगे तो इस तरह की होती है। एक उदाहरण तो मैंने अपनी ज़िंदगी से दिया आपको, तो वो मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्या हुआ था, मुझे खुद भी नहीं पता, चल रहे थे और एकदम से मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, और क्योंकि ग्रास का बहुत बड़ा गार्डन था वो, बहुत ही बड़ा था, तो उसमें मैंने जब इस तरीके से किया तो वो निकल गया। मैंने कहा चलो निकल गया तो निकल गया, है ना। तो वो आना नहीं चाहते। इस तरीके की चीज़ें मैंने पहले भी कई बार ट्राई करी हैं कि भाई एक तरह का सीड था, व्हेन वी यूज्ड टू लिव इन महाराष्ट्र में, देखता था कि जैसे खीरा होता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ खीरा कड़वा भी निकल जाता है, और वहाँ का जो खीरा है उसे काकड़ी बोलते हैं, और वो कड़वा नहीं निकलता कभी भी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये बीज बहुत अच्छा है, मैं उसे यहाँ लेके आया, मैंने दिया भी, लेकिन वो चला चला नहीं, मतलब वो उन्होंने बोया नहीं, और कुछ ना कुछ बात होती रही उसके साथ, फिर वो चला गया एक तरीके से। तो फिर मैंने देखा अभी टाइम नहीं आया इसका मतलब। तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार जब टाइम आता है, नेचर का अपना एक स्वभाव है, एंड इट टेक्स टाइम, ठीक है।
एंड द सेम थिंग आई यूज टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ पुणे। वहाँ पे बहुत ही हारमोनियस सा टेम्परेचर रहता है, थोड़ी गर्मी होती है थोड़े टाइम के लिए, बाकी बहुत ही सुहावना सा मौसम रहेगा। और तो मैं देखता था कि वहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे एक्सट्रीम है, जबकि यहाँ पे भी अच्छा है लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम में रहता है। तो आई थॉट कि भाई हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो द रियल एल्गोरिथम दैट वी नाउ हैव इज धम्मा। धम्मा से वो एनर्जीज जैसे जैसे वॉश आउट होती हैं, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर एनर्जी बैलेंस होती जाएंगी, यहाँ का टेम्परेचर भी हारमोनियस होते जाएगा। आप देखोगे ओवर द टाइम, मे बी 5 years डाउन द लेन, और वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। ठीक है, लोगों में उतनी संवेदनशीलता आनी शुरू हो जाती है प्रकृति के प्रति, और टुवर्ड्स अवर जो भी इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें सोचने लगते हैं लोग। मैंने भी कुछ कुछ डिज़ाइन इसमें लिखे हैं, फ्रैक्टल सिटीज़ ऐसे कुछ कुछ हैं। तो वो जो भी कि किस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिज़ाइंस आएंगे, है ना, कॉलोनीज़ के आ सकते हैं, सिटीज़ के आ सकते हैं, और ऐसे कई लोगों को मैंने सजेस्ट भी किए हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो अब यहाँ से आनी शुरू होंगी, तो वो हम भी समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फॉरेस्ट से हमारे पास काफ़ी कुछ लेने को है। तो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी में एक एग्जांपल है जो बड़ा अच्छा सा एग्जांपल इसमें दे रखा है। इट इज़ कॉल्ड एज खेजरी ट्रीज बोलते हैं उन्हें। जैसे देयर लाइक एक तरह के हैं ये, इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर देखो, इट्स प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, मेनली इन थार डेजर्ट के उधर मिलते हैं ये। और फ्रॉस्ट और ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, टॉलरेट एक्सट्रीम, दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स 40 to 45 डिग्री सी इन समर्स, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं और इन पे कुछ कुछ लोगों ने काम किया है, और वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कुछ नया नहीं है ऐसा कि जैसे भी वातावरण होता है उस हिसाब से नेचर अडेप्ट करता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अडेप्टेबल सिस्टम है, और अभी ठीक है, फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग इट वी से दैट दीज ट्रीज, उसको कुछ नाम रख देंगे, लेकिन वो जैसी लोकल, हमेशा ध्यान रखो कि लोकल एल्गोरिथम इज ऑलवेज बेस्ट। जहाँ भी रहते हो वहीं पे अच्छी वहीं की वेजिटेशन खाओ। ठीक है, इस तरीके का है। टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स से 40 to 45 डिग्री सी, है ना। या फिर विंटर्स में, ये तो समर्स में हो गया। समर्स में हो गया ये 40 to 45, और विंटर्स में लेस देन जैसे भी 10 डिग्री सी, और जो भी है जितना ठंडा होता है तो उसे भी वो कर लेते हैं विंटर्स में। ओके, विंटर्स में ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, and this is also a very nice tree for, this is a kind of a folk remedy for various ailments। बहुत तरह के ailments है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसके, पर अगर आप रेफर करोगे तो काफ़ी तरह के हैं जो ये सॉल्व करता है। ठीक है, सो अगर इफ़ वी सी स्पिरिचुअली ऑल्सो, इफ़ वी सी इकोलॉजिकली ऑल्सो, कि भाई ऑल दीज ट्रीज, बिकॉज पुरुष, अगर हम एक छोटा सा वो देखें कि हम जहाँ पर भी हैं, इट्स काइंड ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम। एक तरीके का एम्बेडेड सिस्टम है, हमने कुछ दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी, उन्होंने ली, और मान लो ऑक्सीजन ली। ये तो मैं सिर्फ इसके टर्म में बता रहा हूँ, और भी कितनी चीज़ें। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम ऑन अर्थ, इफ़ यू सी, ऐसा है ये एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एक तरह का एम्बेडेड सिस्टम है, अर्थ पे तो है ही। ठीक है, ये ठीक है। तो अगर इफ़ सपोज इफ़ वी आर लाइक
हम इसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मान लो इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर हमारे नाक के कुछ से सांस निकल रही है और दूसरे में जा रही है, अगर वो डिपेंड नहीं कर रही है ट्रीज के ऊपर, है ना, तो पुरुष और प्रकृति यहाँ पे एटलीस्ट ऑन अर्थ, पुरुष एंड प्रकृति आर वेरी फाइनली इंटीग्रेटेड, इट्स काइंड ऑफ ए नाइस एम्बेडेड सिस्टम एटलीस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो वहाँ पे इफ़ यू हैव टू टेक केयर, मतलब यू विल हैव टू टेक केयर एंड यू विल हैव टू ऑनर द इंडिविजुअलिटी ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट ऑल्सो। लेकिन अगर आप जैसे ही उसे क्रॉस करोगे, ध्यान में नहीं रखोगे वही चीज़, तो वो तो एम्बेडेड है ही, चाहे आप माने या ना माने, है ना। तो आप मान ही लें तो अच्छा रहेगा। तो फिर उसमें आप क्या करोगे कि आप उसका भी ध्यान रखें, है ना, उसका ध्यान रखोगे तो आप एक्चुअली में अपना ही ध्यान रख रहे हो, क्योंकि इट इज़ फाइनली एम्बेडेड, है ना, वहाँ से कुछ आने वाला है जो आपको मिलने वाला है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। और यही अभी हम एट द टाइम ऑफ दिस क्राइसिस, ये हम देख रहे हैं कि अब नाउ वी आर कमिंग बैक अगेन, है ना, reviving, and we are like having the respect for the nature and forest and different ecosystem, different biodiversity that exist in the forest, but over the time हम थोड़े से उससे अलग हो गए थे, है ना, कट गए थे थोड़े से, बट नाउ अगेन वी आर गेनिंग। तो ये एक फैक्ट है छोटा सा कि एम्बेडेड सिस्टम ये तो है ही, अगर आप देखो तो इट्स अ नाइस एम्बेडेड सिस्टम, और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप करो, आपको स्कूल में पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, बट आप इसे छोटी सी ये इमेज हमेशा याद रखो कि ये किस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। अब जुड़े हुए हैं तो फिर वो ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं है वो आपका ख्याल नहीं रखते, दे ऑल्सो, बिकॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिनेरियोज इज कि भाई मैन हैज़ लाइक लेग्स, तो ही कैन मूव फ्रीली वॉन्डर ऑन अर्थ, वाइल्ड ट्रीज कैन नॉट, है ना, वो तो एक जगह फिक्स हो जाते हैं, तो उनको वो फ्रीडम नहीं है जो फ्रीडम आपके पास है। तो फिर इसका मतलब आपको ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा, और इन रिटर्न वो क्या करते हैं, वो भी फ्रूट्स देते हैं, काफ़ी ज़्यादा चाय देते हैं, अगर आप उसके नीचे बैठोगे तो इट्स कॉल्ड एज नेचुरल एसी, तो जो भी हवा आएगी वो थोड़ी थोड़ी उससे टच होके निकलेगी, तो वो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर लेके आ जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। कभी गांव जाओ तो खेत में देखो, उसके नीचे बैठो तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कभी नहीं लगता। तो वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, इट्स इकोसिस्टम इन इटसेल्फ, उसमें काफ़ी सारी बर्ड्स रहेंगी, ये रहेंगी, तो काफ़ी सारी एनर्जीज़ का एक्सचेंज होता है ट्रीज़ के ऊपर। तो आप सोचो फॉरेस्ट में कितना होता होगा, है ना। इफ़ यू सी द डेंस फॉरेस्ट, अमेजन वगैरह के जो फॉरेस्ट है, देखो कितनी तरह की वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर, है ना। कई बार तो आदमी जा भी नहीं पाता, बट पीपल हैव डेयर टू गो देयर ऑल्सो, वहाँ की कुछ कुछ स्टोरीज भी रहती हैं ना, आप देख सकते हो उन स्टोरीज में। तो ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो खेजरी इसमें क्या था, देयर वाज अ कम्युनिटी, केस ऑफ अ बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग इन वेस्टर्न राजस्थान ऑन द बॉर्डर्स ऑफ थार डेजर्ट, मतलब उधर ही है ये। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन अ रिलीजियस टेनेट फॉर देम, उन्होंने काफ़ी काम किया इस पे कंजर्वेशन के लिए, और उसी में एक वो थे, एक लेडी थे, देयर वाज अमृता देवी बिश्नोई थे, वो इन 1731 sacrificed her life along with many others 363 others for the protection of these खेजरी trees। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे थे इसकी, इसके लिए उन्होंने काम किया, तो फिर गवर्नमेंट ने उनका एक अवार्ड भी दिया हुआ है अभी ये। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है बेसिकली, आप सोचो थार डेजर्ट में, उधर उधर है ये थार डेजर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है। अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, ये है, इन्होंने 1731 में किया था, ईयर 31। ठीक है, फॉर खेजरी ट्रीज था इनका कंट्रीब्यूशन, फॉर प्रोटेक्टिंग खेजरी ट्रीज। ठीक है, तो इनके ऑनर में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड बनाया हुआ है। तो ये तो एक वो है। अब क्यों होता है ऐसा, अभी आप कभी सोचोगे इसको बारीकी से, तो आपको पता लगेगा कि भाई जैसे वंदना शिवा भी काफ़ी काम कर रही हैं इसमें इंडिया के ऊपर, उनका अपना है नवदानिया इंटरनेशनल, नवदानिया के काफ़ी सारी चीज़ें, सीड बैंक्स बनाए हैं उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन पे काम करती हैं वो, कंजर्वेशन पे।
और उन्होंने शायद क्वांटम से कोई पीएचडी करी हुई है, आई थिंक टोरंटो से की है या कनाडा में किसी जगह से करी हुई है उन्होंने, है ना। उसके बाद वो एक्टिविस्ट बन गई और किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। देयर आर नाइस स्पीचेस बाय देम, वंदना शिवा, यू कैन सर्च, और उनकी स्पीचेस सुनना कभी, बहुत ही मीनिंगफुल है ना। मैंने देखी है पूरी, उसके ऊपर काम किया है, तो मैंने बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छा बता रही हैं वो, है ना। तो किस तरीके से लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी को छोड़ के इधर क्यों आ गए, क्योंकि ये तो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है ना। दिस इज़ द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी गिवन बाय नेचर, और इसको आप कैसे जब तक प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक आप अपने को आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी सारे मोमेंट्स में वो रही हैं, और शी इज़ लाइक वेरी इंटेलिजेंट, और किस तरीके से वो काम कर रही है मैंने क्लोजली फॉलो भी किया है, देखना आप भी देख सकते हो, वंदना शिवा नाम है उनका, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, बट इसमें, तो इसमें एक अप्रोच जो हमने डिस्कस करी कि भाई जैसे वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर, वो जो कम्युनिटी स्वामी क्रियानंदा है, वो वहाँ फेंकते हैं बीजों को फेंकते हैं, तो वो उगते हैं, और एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस उनका रहता है सिलेक्शन का और ग्रोथ का। तो वही सारी चीज़ें जंगल में भी होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी, सुभाष पालेकर ने भी, व्हेन ही वाज लिविंग इन, वो महाबलेश्वर के जंगल्स में थे, तो उन्होंने नीचे से देखा कि भाई क्या होता है, और वो कैसे उन्होंने खोजा, इट्स अ रिसर्च इन इटसेल्फ। जब कभी सामने आएगी खुल के तो आपको पता लगेगा कैसे उन्होंने किया होगा। इट इज़ अ स्टोरी इन इटसेल्फ कि भाई कैसे उन्होंने ये पता लगाया कि देयर इज़ अ नाइस इकोसिस्टम, देयर इज़ अ वेरी नाइस सिस्टम ऑफ दिस मदर नेचर। आपको अलग से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बचा लो तो ही वो सबसे एडवांस सिस्टम है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हमें लग रहा है कि वी हैव बिकम मोर एडवांस फ्रॉम द नेचर, बट वो आइडियली में है नहीं, उससे ज़्यादा एडवांस नहीं है। वो तो ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है, वो लगता नहीं है, लेकिन उससे एक सबसेट को हम एक्सप्लोर करके धीरे धीरे वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट वाज गिवन टू अस इन द अर्लियर सिचुएशंस वाज गुड, है ना। बट सिंस सृष्टि तो चलेगी एंड टेक्नोलॉजीज भी आती रहेंगी एक एक करके, बट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वो बैलेंस करने के साथ ये भी रहेंगी और फिर वो भी रहें। एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी अ कंसर्न, हमारे माइंड इधर उधर ना हो जाए, माइंड में कंसर्न होनी चाहिए, बस इतना ही। अगर इतना सब हम पढ़ के भी आपके माइंड में उनके प्रति कंसर्न आती है तो वो अच्छा है, और उसमें आप कुछ कुछ करके देखें, है ना। अगर इफ़ यू सी कि भाई देखो, एक देयर इज़ अ नाइस थिंग टू इट कि जब भी हम घर बनाते हैं, आप सोचो कि देखो सभी के घर हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो घर जब बनाते हैं तो उतनी सारी लैंड तो हमेशा के लिए सील हो गई, तो उस लैंड पर जितनी भी वेजिटेशन होती, उस पर सनलाइट पड़ती, उससे जो भी अगर कोई ऑक्सीजन निकलती, कुछ पंछी आते, वो सब तो फिर ख़त्म ही हो गया अभी के लिए। जब वहाँ पर एक घर बन गया तो अब तो वो वापस तो हटने नहीं वाला है, राइट। तो अब हम क्या करें, मतलब मैं सोच रहा था कि इस पे क्या करें, क्योंकि घर तो सभी को चाहिए, राइट। तो मुझे लगा कि भाई घर तो बन गया, लेकिन छत तो आपके पास है अभी भी, क्योंकि जितने पे बनाया उतनी छत तो मिल ही जाएगी, उतनी है, उससे थोड़ी कम। तो उस पे आप किसी एक तरह की फार्मिंग कर सकते हो। तो वो कैसे होगी, अगर गमले हैं तो उसमें ले लो, है ना, और वहाँ पे कोई छोटा मोटा वो बना सकते हो, ऊपर आपका जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पॉली हाउस टाइप का भी बना सकते हो, या फिर और भी किसी तरीके से आप वहाँ पे कुछ फार्मिंग तो कर ही सकते हो। जैसे किचन के लिए भी कुछ फार्मिंग होती है, तो वो आप एटलीस्ट कुछ हद तक तो वो चीज़ कवर की जा सकती है, क्योंकि घर तो नीचे तो बन चुका है, वो नहीं। तो मुझे लगता है इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, जब भी हम किसी घर में रहते हैं तो उसकी जो छत है, क्या हम उस पर कुछ लगा सकते हैं, कुछ गमले लगाएं, कुछ एटलीस्ट वेजिटेशन लगाएं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कभी खुद से हाथ से लगा के देखें और उसको बड़ा करते हुए उसकी यू टेक केयर ऑफ दैट, और फिर वहाँ पे जो भी फ्रूट्स आते हैं वो यूज़ करें घर में, यू विल फील मच एलेटेड फ्रॉम इनसाइड, जो आपको कोई टेक्नोलॉजी के साथ काम करके नहीं मिलेगा, जो खुशी आपको उसके साथ मिलेगी। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि नीचे की लैंड हमने कवर कर ली, तो अब उसके ऊपर जो कुछ होता है वो सब हमने बंद ही कर दिया एक तरीके से। तो फिर ऊपर में हम कुछ भी करें, अगर हमारी फार्मिंग जो है, रूफ टॉप फार्मिंग इस तरीके के अगर शुरू हो जाती है वहाँ पर, तो एटलीस्ट वो कुछ हद तक हम उसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी तरफ से, बिकॉज इट इज़ अ कर्म ऑल्सो, है ना। आपका कार्मिकली भी एक ड्यूटी है उसको सॉल्व करने की, जो शुरू में नहीं लगती आपको, लेकिन इट इज़ देयर, ठीक है। रूफ टॉप फार्मिंग हो सकती है। मतलब दिस इज अ स्मॉल, these people are like they have sacrificed their life
एंड फॉर सम कंजर्विंग दीज खेजड़ी ट्रीज, उन्होंने वहाँ पे काम किया, इतनी पहले काम किया और बचाने की कोशिश करी। क्यों होता है ऐसा कि जब भी ये ट्रीज एक इकोसिस्टम है और ये बैलेंस करने के लिए आते हैं, तो वेर एवर यू आर लिविंग, सोचो कि योर बॉडी इज ऑल्सो फेसिंग सम सनलाइट, है ना। आप देखो कितना एक नाइस छोटा सा एल्गोरिथम है, अगर आप समझ सके तो, कि आप जहाँ पे भी रहते हैं सोचो, है ना, और यहाँ पे सन है तो सनलाइट आपके ऊपर पड़ रही है, और यहाँ पे एक ट्री भी है कोई वहीं पे लोकली जो भी है। अब जैसे मैं उस ट्री की बात कर रहा था कि उसका बीज यहाँ आना नहीं चाहता था, या अगर मैं जबरदस्ती ले भी आता तो वो उगता थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा इकोसिस्टम उसको एनवायरनमेंट अलग मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है। ईयरली भी अगर हम कैलकुलेट करें, डेली भी करें, तो यहाँ पे हमारे कवर में जैसे एंड सोलर, जब भी हम सोलर एनर्जी का डिस्कशन कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा सनलाइट हमें मिलती है यहाँ पर। तो उसी तरीके से वो वाले जो हैं ट्रीज जो देर आउटसाइड किसी ऐसे एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे उनको उतनी आदत नहीं है। यहाँ पे एकदम से ड्रास्टिक चेंज होगा, तो ड्रास्टिक चेंज कभी वेजिटेशन ले नहीं पाती है ना। इट हैज़ टू बी स्लो स्लो होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है तो भाई रात में इतने तक टेम्परेचर हो गया, इतने एकदम से कम हो गया, और दिन में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इतना जो डिफरेंस है वो वहाँ के ट्रीज़ वैसे हो गए हैं सख्त टाइप के, तो वो इतना वो उसको करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि रोज़ झेलते हैं वो उसको, है ना। दिन में इतना हो जाता है, फिर रात में उतना ठंडा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो उसी तरीके से दिस इज़ ऑल्सो अ स्लो एवोल्यूशन प्रोसेस। तो इसमें कई लोग हैं, वंदना शिवा ने भी बोला कि वो उसका पेटेंट ले रहे हैं या उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है ना। तो वो से, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, सो यू गोइंग अगेंस्ट द नेचर, एक तरीके से तो जा रहे हो, क्योंकि वो नेचर में उसका जो सीड है, अब ये जो ट्री है ये किसी एक जगह पर लगे हुए हैं, और लाइक दे हैव स्पैन थाउजेंड ऑफ ईयर्स लिए हैं उन्होंने। किसी एक ट्री ने नहीं लिए, लेकिन उसके जो बीज आए थे फिर उन्होंने लिए, तो थोड़ी थोड़ी अडेप्टेशन उन बीजों में होती चली गई एज पर द एनवायरनमेंट। तो अभी के आज की डेट में इफ़ यू टेक वन सीड, जो भी हाथ में लोगे, तो वो सीड अपने आप में एक सीड नहीं है, इट कैरीज द वाइब्रेशंस ऑफ द, इट कैरीज द इम्प्रिंट्स ऑफ द प्रीवियस ट्रीज ऑल्सो। जिससे वो आया था उसका भी इम्प्रिंट उसके अंदर है, वो किससे आया था उसका भी इम्प्रिंट रहता है। इस तरीके से एक म्यूचुअल इम्प्रिंट आपके पास अभी जो सीड आता है, तो हमें लगता है ये तो अभी का सीड है, लेकिन वो अभी का है नहीं, उसके अंदर स्लो स्लो अडेप्टेशंस हुए हैं, और वो काफ़ी पुराना अडेप्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ठीक नहीं है, लेकिन पीपल आर डूइंग इट इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द नेम ऑफ न्यू ब्रांचेस दे आर डूइंग इट, बट वो उतनी उचित नहीं है। until unless the case is very relevant, वो आपको पता होना चाहिए। there has to be a body which will decide कि भाई ये ऐसा हो सकता है और इकोलॉजिकली सही है कि नहीं। तो वो इसी के अगेंस्ट में वंदना शिवा वाज रेजिंग हर वॉइस। वो बहुत, उन्होंने किस किस को नहीं झाड़ा है, बहुतों को बोला है उन्होंने, है ना, आप देख सकते हो। क्योंकि द बिजनेस मैन दैट पीपल आर वर्किंग, दे आर जस्ट वर्किंग फॉर देयर प्रॉफिट, दे आर नो कंसर्न्स टू दैट, मोस्ट ऑफ देम, है ना। तो वो किस तरीके से इन्होंने उनको भी खूब बोला है, एंड दे आर आल्सो टेकिंग केयर ऑफ, मतलब उन्हें भी थोड़ा डर लगता है इनसे, और क्योंकि ये बोलती हैं खुलकर, है ना, एंड शी इज़ लाइक अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, और किस तरह से फ्लोरा फ्योना को बचा रही हैं ये। तो अब सोचो कि सनलाइट आपके ट्री के ऊपर भी पड़ रही है और आपके ऊपर भी पड़ रही है, एज वी कंसिडर कि आवर स्किन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सोलर सेल। तो जो म्यूटेशंस इसमें हो रहे हैं, उसी एनवायरनमेंट में आप भी रह रहे हो, तो आपके अंदर भी हो रहे हैं। तो अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी तरीके की, तो सम हाउ नेचर इस ट्री के फ्रूट्स के थ्रू उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। वाई? बिकॉज इट इज़ लाइक एन एम्बेडेड सिस्टम। देखो, ये हमारे सहयोग के लिए बनाई गई है प्रकृति। तो किसी एक जगह पर धूप पड़ रही है, मैं भी वहीं रहता हूँ, घर बना के रहता हूँ, या उस गांव में रहता हूँ, तो वहाँ के आसपास के जो ट्रीज़ हैं काफ़ी कुछ एरिया के, उसके ऊपर भी वही सनलाइट पड़ रही है, उसी विसिनिटी में पड़ रही है ना। वही एनवायरनमेंट जो एयर का है, सपोज एयर हैज़ गॉट सम टाइप ऑफ, उसमें कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है, तो वो उस ट्री को भी मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है, दोनों को। तो वो जो भी अडेप्टेशंस उस ट्री में हो रही हैं, वो somehow they are helpful to me also. So that is why they say that आपको you should have a habit of eating local foods, local fruits. तो आप इस सीजन में जैसे गुआवा हो रहा है या जो भी हो रहा है ना, तो वो यू शुड टेक ईट लोकल फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि इस समय पे जो वेजिटेशन यहाँ पर है, जो एनवायरनमेंट यहाँ पर है, जो सनलाइट यहाँ पर है, जो इन चीज़ों का बैलेंस है, उसी में वो फ्रूट निकल के आया है, एंड इट हैज़ गॉट अ नाइस बैलेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स ऑल्सो। तो वो वाली चीज़ जब आप खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे। तो इसी तरीके से इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन द वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट कवर वाज देयर, तो वहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते थे वो दे यूज्ड टू ईट, है ना। इवन इन चाणक्य सीरियल ऑल्सो आई हैव सीन कि भाई कई थे जो अलेक्जेंडर के जो वो थे मिनिस्टर्स वगैरह, दे यूज्ड टू गो टू दोज ऋषिज इन द फॉरेस्ट कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, आप इतने इंटेलिजेंट हो तो हम तो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आप जो दे रहे हो वो सब मेरे पास ऑलरेडी है। मैं जंगल में रहता हूँ, मुझे जब भूख लगती है तो यहाँ के पेड़ अपने आप ही उनके ऊपर फ्रूट्स आ जाते हैं, मैं वो खा लेता हूँ और मैं खुश रहता हूँ, है ना।
तो कह रहे हैं मुझे आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के लोग भारत में थे, तो दे वर कॉल्ड ऋषिज, है ना। तो वो किस तरीके से नेचर उनको सपोर्ट करता ही है, और आपको भी, हर किसी को करता है, जहाँ भी नेचुरल हैबिटेट है वो सपोर्ट करती है। तो उस पर एक भी फ्रूट आता है आप उसे ले लो। तो जैसे इस समय पे जो मौसम की सब्जियां और फल आ रहे हैं उन्हें आप ज़रूर खाएं। लेकिन एक ऐसा भी ट्रेंड चला इन द लास्ट टाइम, जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो कहीं की भी चीज़ कहीं मिल रही है। अब मान लो मैं कैलिफोर्निया की चीज़ डायरेक्ट एकदम से यहाँ पे खा रहा हूँ, है ना। तो अभी वो वहाँ से आ गई है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज़ सो फास्ट, है ना। वो किसी न किसी तरीके से ओवरनाइट आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, मेरे पास पहुँच रही है, 2-3 दिन में पहुँच रही है मान लो। और या फिर उससे थोड़े से टाइम में पहुँच रही है, तो वहाँ पे हुई, वो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल थी और हम भी उसे खा रहे हैं, तो वो उतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब इफ़ यू कंसिडर दिस आवर ह्यूमन सिस्टम, ये भी एक तरह का ह्यूमन सिस्टम है, तो उसके लिए आप लोकल चीज़ें ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो लोकल अप्रोच है, ये अब निकल के आ रही है हर चीज़ के अंदर। आप देखो कि एक सिटी, एक वो कहते हैं ना, एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद, किसी उसमें कोई कोई चीज़ है, तो जैसे ये जो चीज़ निकल के आ रही है, ये लोकल इकोसिस्टम है। मतलब एक सोचो इस तरीके के नोड्स हैं, जैसे कंप्यूटर्स में भी एक टोपोलॉजी बोलते हैं इसको, जैसे रिंग टोपोलॉजी है, इस तरीके कुछ बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फ्लोरा फिना इस तरह का बना लो, और यहाँ पे मान लो अगर एक सिटी सी है, ठीक है, एक सिटी है, उसके अराउंड में जो भी वेजिटेशन है, तो यहाँ पे जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, इस पे मान लो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं, है ना, फ्रूट्स हैं यहाँ पे कुछ, सोचो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं। मतलब आई एम जस्ट लाइक टेकिंग के इस रेडियस के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा समझ सकते हो, है ना। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो भी, तो वो आप कंज्यूम करोगे तो आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे। ठीक है, और जैसे ही आप उस रूल को ब्रेक करोगे, ये उस ट्री जैसा ही है, जैसे वो ट्री वहाँ से यहाँ नहीं आना चाहता था, इसी तरीके से अगर उसके फ्रूट्स भी आप जब ले आओगे, आप ला सकते हो, बिकॉज ह्यूमन इज़ लाइक द मोस्ट पावरफुल ऑफ देम, राइट। हमारे पास सारे मीन्स हैं, तो आप उसे वहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे, आपको अच्छा भी लगेगा कि हम तो ऐसे खा रहे हैं। लेकिन फॉर योर, इट इज़ लाइक द कंप्यूटर सिस्टम में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक ऊपर से। सो इफ़ यू आर हैविंग अ गुड लुक एंड फील, बट योर ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी गुड, है ना, तो तभी आपका सिस्टम चलने वाला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कब अच्छा रहेगा, जब आप लोकल अप्रोच को फॉलो करो। ठीक है, तो ये लोकल अप्रोच है, और यही क्वांटम अप्रोच भी है, ऐसे समझ लो। द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग इज लोकल। ठीक है, कम्युनिटी लोकल, इट कुड बी लोकल कम्युनिटी, इट कुड बी लोकल फ्रूट्स, इट कुड बी लोकल वेजिटेबल्स, इट कुड बी लोकल माई, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ एक तरह की वो चलती है, रागनी वगैरह चलती है, लोगों को वो पसंद आती है। लेकिन उन लोगों को एकदम दूसरी तरह का म्यूज़िक दिखाया जाता है, उनको पसंद नहीं आता, वो चलता ही नहीं है, बिकॉज उनको इस चीज़ की आदत लगी हुई है। तो वो जो लोकल जो सिस्टम है, जब तक आप उसे हाईलाइट नहीं करोगे, उसी में कुछ अच्छा करो, है ना। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, तो उसी में कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो ये फॉरेस्ट की अप्रोच थी, ये काफ़ी अच्छी है, और मुझे तो ठीक लगती है ये, है ना। और किस तरीके से इसमें कई सारे मूवमेंट्स भी हुए हैं, है ना। जैसे एक केजरीवाला देखा, एक चिपको आंदोलन था, है ना, वो हुआ, काफ़ी दिनों चला है वो भी, है ना। तो और ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो नेचर ने आपको ये जो लोकल अप्रोच दे रखी है, और जैसे इफ समबडी कम्स इन द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी और इन द नेम ऑफ एनी अदर थिंग, जैसे ही वो इस लोकल अप्रोच को, इफ दे ट्राई टू ब्रेक दिस, तो एकदम सम सोल विल राइज एंड दे विल हैव सम आंदोलन्स। क्यों होगा वो आंदोलन, क्योंकि नेचर ने एक लोकल इकोसिस्टम बना रखा, नेचर को पता है ये बहुत अच्छा है लोगों के लिए और आपकी बेनिफिट के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। लेकिन अगर उसमें से कुछ एनर्जीज ऐसी आती हैं जो उसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगी, तो दे विल सम एनर्जीज विल राइज हु विल ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम, और उसी के कारण ये सब चलता है। दैट इज़ वाई यूल सी के भाई जो ये चला रहे हैं कई बार इन आंदोलन में, दे आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट पीपल, दे हैव स्टडीड वेल, है ना, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन फिर भी वो ये करते हैं, बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग द जेन्युइन कंसर्न फ्रॉम इनसाइड एंड दे आर रेजिंग देयर वॉइस। तो नेचर अपने आप को बचा के रखता है हमारे थ्रू ही, है ना। कहीं ना कहीं कोई एनर्जी राइज करती है और वो उससे बचा लेती है, क्योंकि उसको बचाने से बहुत सारे लोगों का भला आने वाले दिनों में होगा। तो नेचर हमेशा ये लोकल वाली, जो लोकल इकोसिस्टम वाली अप्रोच होती है, इसे फॉलो करती है। इवन मैंने इस तरह की बहुत ही फाइन स्टडीज़ हैं, जब मैं आता था वहाँ से तो मैं देखता था गुजरात में एक तरह का टेम्परेचर है, बाय ट्रेन आ रहा हूँ मैं, तो मैं ऑब्जर्व करता था कॉन्शियसली, मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि भाई आखिर ये देखूँ ये टेम्परेचर बदलता कहाँ है। तो मैंने देखा गुजरात तक एक तरह की शांति चल रही है, बहुत साफ़ सुथरा सा माहौल है, और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है टेम्परेचर भी, है ना। तो मैंने देखा कि वो एकदम से नहीं बदलता, इट हैज़ ऑल्सो अ ट्रांजिशन पीरियड। जैसे हर चीज़ में एक ट्रांजिशन होता है, ऐसे वातावरण में भी एक ट्रांजिशन होता है। तो कुछ किलोमीटर्स का वो रहेगा,
स्पैन अगर आप स्टडी करोगे तो पता लगेगा, है ना। और जैसे जैसे वो होगा तो वहाँ पे इन ट्रांजिशन में फॉरेस्ट को देखोगे और वेजिटेशन को देखोगे तो वो अलग तरीके की है। वहाँ से और थोड़ा आगे आओगे तो देखोगे यहाँ पे वेजिटेशन एकदम से बदल गई है ना। तो वो एकदम से नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है। वो जो ट्रांजिशन है वहाँ पे फ्रूट्स अलग होंगे, वहाँ पे थोड़े से प्लांट्स अलग होंगे, लेकिन फिर उन्हीं की एक हाइब्रिड फॉर्म आगे आनी शुरू हो जाएगी और फिर पूरी तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से जब भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ से शिमला जाओगे तो वहाँ पे एक तरह का होगा, यहाँ होगा, लेकिन कहीं तो वो बीच में थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होगा। नोबडी ऑब्जर्व्स दैट, बट अगर कोई करना चाहे बहुत तो वो कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक प्रोजेक्ट था, मुझे याद है खगोल विश्व में, वो लोग मानसून ट्रैक करते थे। तो व्हेन आई हर्ड दैट तो मैं कहता था मानसून भी ट्रैक होता है क्या। और वो जीप लेके मानसून को ट्रैक करते थे। कैन यू बिलीव कि भाई उनका एक प्रोजेक्ट था, फंड्स भी रहते थे उनके पास, और वो कहाँ से मानसून उठ रहा है और सी के उधर से आते थे और वहाँ से जीप्स लेके चल रहे हैं और किस तरीके से क्लाउड्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप देखोगे तो, अगर आप सुनोगे तो आप बोलोगे लोगों के पास तभी टाइम है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं क्या। करते हैं लोग, है ना। तो वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, या इसरो का, इसरो शायद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, कुछ कुछ फंडिंग थी उसकी। तो इस तरीके से मानसून ट्रैकिंग भी उन्होंने करी है, करते भी हैं लोग, है ना। तो उनके फंड्स हैं और डेडिकेटेड लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी। अब मैं कुछ कुछ एक प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ पे भी। सो दैट वाज लाइक इट, है ना। ठीक है। सो देर आर डिफरेंट पीपल्स हु आर वर्किंग फॉर दिस। देर आर डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स ऑल्सो, है ना। हग द ट्री मूवमेंट था एक, चिपको आंदोलन तो ये है ही, उसी को चिपको बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों ये रहा। और किस तरीके से कहीं पे सपोज सम डैम इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड और उसकी वजह से लोकल वेजिटेशन को बहुत फ़र्क हो रहा है, सो पीपल माइट गेट राइज, बट यू मे नेवर नो इन एडवांस के ये कैसे होते हैं। मतलब आप उसको ऑब्जर्व ही कर सकते हो, दैट इज़ पार्ट ऑफ द न्यूज़। जब वो होगा तो फिर आप यू विल सी दैट इन न्यूज़ एंड यू कैन आफ्टर दैट इट बिकम्स हिस्ट्री एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टडी दैट। मैं इसे क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ तो देखता हूँ नेचर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए देर आर सम सोल्स उसको राइज करा देता है, और वो उसे नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को। और नए इकोसिस्टम को लाने में, या तो पुराने को बचाने में, या फिर अगर नए आने हैं तो उसको लाने के लिए भी लोग आते हैं। तो वो किस तरीके से आएंगे, एंड दे वर्क कंटिन्यूसली डे इन एंड डे आउट, है ना। एंड दे हैव गॉट लाइक, अंदर से एक चेतना ही आ जाती है कि हाँ मुझे ये करना है, नहीं तो और कोई चीज़ तो है नहीं उसको कराने वाली। सो दिस इज़ हाउ। सो ठीक है, लेट अस एंड दिस फॉर टुडे। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर हार्वेस्टिंग एंड डैम्स से रिलेटेड हल्का सा एक डिस्कशन होगा। कोल एंड पेट्रोलियम, ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी एक क्लास के बाद ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ओके देन, we'll end this lecture on this note and we'll meet tomorrow. ठीक है, टेक केयर, बाय। Bhavya there?